हाय देयर, वेलकम टू एसबीज मास्टर क्लास। और आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू क्रिएट अ प्रोडक्ट दैट अ कस्टमर एक्चुअली वांट्स। ऑलराइट, सो जस्ट टू गिव यू अ क्विक पर्सपेक्टिव, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कस्टमर को चाहिए, एक्चुअल में चाहिए, इज समथिंग विच इज गोइंग टू हैव अ लाइफ चेंजिंग इम्पैक्ट इन योर वर्क, इन योर रेवेन्यू, इन योर ओवरऑल बॉटम लाइन। ऑलराइट, वर्सेज अ प्रोडक्ट जो कि कस्टमर को नहीं चाहिए, यू कैन क्रिएट द बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड स्टिल you can be completely broke. All right, let's just take the example of Tata Nano. Right, it was a good product, but customers did not wanted that particular product. Right, so ultimately you don't want to end up creating a product जो कि customers को चाहिए ही नहीं, and after that you can do best marketing, best funnels, best everything, लेकिन वो प्रोडक्ट सेल नहीं होएगा. सो हाउ डू वी क्रिएट अ प्रोडक्ट दैट एक्चुअली सेल्स? हाउ डू वी क्रिएट अ प्रोडक्ट दैट एक्चुअली कस्टमर वांट्स? Right, so we are going to be talking about this in this particular video. By the way, just in case you don't know me, my name is Saurabh Bhatnagar. I started my entrepreneurship journey 10 years ago, and I was earning like 500 rupees a month for the first 4 years. After that, I scaled a couple of my businesses to $1 million per year, and right now we are in the phase of building FlexiFunnels, which is for India's first funnel builder. So let's get inside the video, right? So how to create a product that customer wants? The number one thing, so I'm going to give you 4 ways, all right? The number one thing, the biggest thing and the simplest thing, right? The number one thing that you need to do is that you don't need to reinvent the wheel. कुछ नया create करने का try मत करो. What you simply need to do is look at the products that are already there in the market. Look at the products जो कि already customer buy कर रहे हैं उस तरीके का product, and all that you need to do is you just need to come up with a better product in that particular niche. So the customers that are already there, the products that they are already purchasing, it is a simple validation of the fact कि उन customers को already वो product चाहिए. All that you need to do is come up with a better, more innovative product, and the customer would want your product. It's as simple as that, right? Now how do you do that? It's simple. जो भी products market में चल रहे हैं आपके सामने हैं, गो आउट टू द साइट्स, राइट? उनके रिव्यू वाली साइट्स पे जाओ, उनके पेज पे जाओ, फेसबुक वगैरह पे जाओ, जो भी उनके पेज है, रिव्यू साइट्स है, जो कुछ भी है, एंड लुक एट द फीडबैक कि उस प्रोडक्ट में किस चीज़ की कमी है, वो प्रोडक्ट किस तरीके से उनके कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रहा है. व्हाट आर द थिंग्स दैट आर स्टिल मिसिंग इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एंड देन यू कम अप विद अ बेटर प्रोडक्ट विद दैट, राइट? ओवर दैट. गॉट इट? दैट्स नंबर 1. Number 2 is, I mean, this is something which is my favorite, but it's more of a longer term, long-term route. Lekin again, this is something which will 100% assure that, you are creating something totally new and totally, much better. And that is by actually working in the market. So when you are working in the market, you will come to know automatically कि किस तरीके के products की, requirement है market के अंदर. It can be anything. It can be anything. It can be a requirement. It can be luxury. It can be anything. But by being in the market, एक्चुअली बाय बीइंग इन द मार्केट, बाय वर्किंग इन द मार्केट, आपको खुद पता चल जाएगा यार ये प्रोडक्ट तो चाहिए ही चाहिए मार्केट के अंदर. एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आपको नहीं आइडिया है, एक प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज ज़ेपियर. ओके, सो वो प्रोडक्ट क्या करता है, डेटा को वो एक टूल से दूसरे टूल में पास करता है. बिकॉज सी, इंटरनेट पे हज़ारों एप्लीकेशंस है. अब वो हज़ारों एप्लीकेशंस का आपस में तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता सबका, राइट? लेकिन एक जो कस्टमर है, एनी नॉर्मल कस्टमर, वो इस एप्लीकेशन का भी यूज़र हो सकता है, वो इस एप्लीकेशन का भी यूज़र हो सकता है, राइट? सो अब उसको अपना डेटा दोनों जगह पे चाहिए. सो व्हाट ज़ेपियर गाय वुड हैव आइडेंटिफाइड वुड हैव कि यार मेरे को ये डेटा यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए. सो बाय एक्चुअली बीइंग इन द मार्केट, बाय एक्चुअली वर्किंग इन द मार्केट, ये ऐसा नहीं है कि सपने में आ गया होगा उसके, वो खुद मार्केट में काम कर रहा होगा और खुद उसको एक एप्लीकेशन से डेटा दूसरे में डालना होगा, विच वुड हैव बीन अ मैनुअल प्रोसेस, एंड देन ही केम अप विद एन ऑटोमेटेड प्रोसेस फॉर दैट, एंड दैट्स हाउ ज़ेपियर केम इनटू एग्जिस्टेंस, राइट? सो बाय बीइंग एक्चुअली वर्किंग इन द मार्केट, दैट्स नंबर 2, राइट? नंबर 3 इज, अगेन, जो भी आपका निश है, आप जिस भी निश में काम कर रहे हो, काम करना चाह रहे हो, उस निश के फॉरम्स पे जाओ. ऑनलाइन फॉरम्स होते हैं, डिस्कशन फॉरम्स, फेसबुक ग्रुप्स, लिंक्डइन ग्रुप्स, इन सारी जगह पे जाके देखो कि लोगों ने किस किस तरीके के कमेंट्स डाले हुए हैं, या फिर उस तरीके के यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोस में जाके देखो, जो उस तरीके के यूट्यूब चैनल होंगे, लोगों ने किस किस तरीके के कमेंट्स डाले हुए हैं कि यार अगर इस तरीके का कोई प्रोडक्ट होता तो मज़ा आ जाता, इस तरीके का कोई प्रोडक्ट होता तो लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती. पीपल ऑल द टाइम दे नीड बेटर प्रोडक्ट्स दैट कैन मेक देयर लाइफ ईजियर, बेटर, फास्टर, राइट?
but if you can come up with those products, automatically they are, going to pay to you. It's as simple as that. So if they are putting in the comments like that कि यार अगर ऐसा, it's as simple as let's say if I talk about photography, all right, if I talk about photography, तो अगर कोई लेट्स सपोज पहले ट्राइपॉड स्टैंड आते थे, एक सिंपल ट्राइपॉड स्टैंड आते थे जो कि यहाँ पे आप खड़ा कर सकते थे, लेकिन अगर मैं बाहर आउटडोर में फोटोग्राफी कर रहा हूँ, राइट, थिंक अबाउट इट, अगर मैं बाहर आउटडोर में फोटोग्राफी कर रहा हूँ, मेरे को कैमरा यहाँ पे सेट करना है, यहाँ पे एक पेड़ है उस पर सेट करना है, तो आपने देखा होगा एक गोरिल्ला पॉड टाइप ऑफ वो आते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड आते हैं जो कहीं पे भी सेट हो जाते हैं। तो वो प्रोडक्ट मैंने आज से 5 साल पहले तो नहीं देखा था, लेकिन अभी वो है मार्केट के अंदर। वाई? क्योंकि किसी ने उसका आइडेंटिफाई नीड आइडेंटिफाई किया होगा कि हाँ यार ये इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए। सिमिलरली when photographers they run around with the camera or move with the camera, just an example, right, they identified कि यार वीडियो हिल जाता है, right, so they came up with those gimbal or things like that. Similarly, just one more example, एक अभी one of my friends was telling me कि एक बीच में एक परफ्यूम कंपनी थी, जैसे लोग बड़े वाले परफ्यूम लेके आते हैं एंड मे बी इफ दे डोंट लाइक इट आफ्टर सम टाइम दे एंड अप नॉट यूजिंग इट, तो उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट निकाला कि वो आपको मंथली सब्सक्रिप्शन पे देंगे 5 छोटे परफ्यूम, और उसमें से आप जो भी आपको पसंद आया फिर आप मंथ ओवर मंथ से वही मंगा सकते हो। तो ऐसा नहीं होएगा कि अगर आपको पूरा परफ्यूम नहीं पसंद आया तो आपका वो पूरा का पूरा वेस्ट हो गया। डू यू गेट इट? सो बेसिकली बेस्ड आउट ऑफ द कस्टमर फीडबैक यू आर एबल टू क्रिएट अ प्रोडक्ट और यू आर एबल टू क्रिएट अ सर्विस। गॉट इट? एंड द फोर्थ वे इज, अगर आपके दिमाग में कोई प्रोडक्ट आइडिया है, सी the big holy grail, the big mistake that anybody can do is कि आपने प्रोडक्ट बना लिया, अपना पूरा टाइम एफर्ट पैसा सब उसमें डाल दिया, साल लगा दिए, एंड देन द कस्टमर डज नॉट वांट दैट प्रोडक्ट। That's the biggest mistake that you can do, right? I mean that's something जिसकी वजह से आपका टाइम पैसा सब गया, right? So how to avoid that, or how to have the best probability to avoid that, right? So that's why we are discussing this thing in this video. So the fourth way, there is, and that is that you create a survey. एडवर्टाइज करो, और जो भी आपके निश में उस तरीके की ऑडियंस है, उस तरीके की ऑडियंस के सामने अपना सर्वे लेके चले जाओ, and maybe incentivize them कि यार let's suppose just fill this survey. There is a 10 or 20 questions का survey, and if you will fill this survey I will pay you, let's say, $10. So maybe let's say you get a feedback from 100 targeted people, and you have 100 targeted people feedback. They will give you the actual things कि उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या चीज़ बेटर हो सकती है current products में. Think about it. So it will give you a lot of ideas how to make your product or how to improvise your product. और वो सब करने के लिए आपका जो टोटल कॉस्टिंग गया इट्स हार्डली $1,000, विच इज़ नथिंग कम इन कंपैरिजन टू अगर आप साल लगा देते हो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए एंड देन इट एंड्स अप नॉट सेलिंग। लाइक अभी फ्लेक्सी फनल्स में आर डेवलपमेंट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 3 years, राइट? एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए टाइम जाता है, राइट? और एफर्ट जाता है, पैसा जाता है, राइट? सो इफ यू कैन, हाउ यू कैन अवॉइड दैट? इट्स एज सिंपल एज, जैसे अगर कोई फूड डिलीवरी ऐप्स है, तो फूड डिलीवरी ऐप्स तो अभी आई हैं, लेकिन क्या पहले ऐसा नहीं होता था कि हम किसी को बोल देते थे या हम चाहते थे कि यार काश कोई मेरे लिए बाहर से खाना लेके आ जाए, राइट? या फिर किसी ने मोहल्ले में बोल दिया कि अच्छा मैं आपके लिए खाना लेके आ जाऊंगा, विल यू पे मी एक्स्ट्रा 10 rupees, समथिंग लाइक दैट। आई मीन जस्ट इट्स दैट काइंड ऑफ फीडबैक कि अगर मैं सिर्फ अपनी सोसाइटी में पूछ लूँ, अगर मैं आपके लिए ये चीज़ ले आऊँ, क्या मेरे को पे करोगे? इट्स द सिमिलर काइंड ऑफ सर्वे दैट यू कैन रन ओवर द इंटरनेट. You can advertise on Facebook or any other platform and just run a quick survey. But basically you will get the essential feedback that will help you in creating a product that the customer wants, and ultimately it will end up in you running a profitable company. Because ultimately if there is a product that the customer wants, there can be a probability कि आपका वो product नहीं चल रहा है या आपका वो product लोगों को पसंद नहीं आ रहा, लेकिन still you can improvise it, still you can make it better, you can do the innovations in it. लेकिन अगर आपने product ही ऐसा बनाया जो उन्हें चाहिए ही नहीं, तब तो बात ही खत्म हो जाती है ना. सो एटलीस्ट लेट्स क्रिएट समथिंग विच इज लेट्स से नॉट दैट गुड, बट एटलीस्ट द कस्टमर वांट्स इट, एंड देन वी कैन कीप ऑन मेकिंग इट बेटर, राइट? डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वी आर मेकिंग, राइट? ऑफ कोर्स. So yeah, that's it, right? So I hope this video gives you enough insights on how to make a product that the customer wants, profitable products, the key thing of your company becoming profitable. And yeah, that's it. Thank you.